Hello everybody, this is Arup sir from Drona Classes, Jamshedpur. We are here to celebrate our achiever who is my ex-student and he has cleared one of the most competitive exam of India, which is Merchant Navy. He secured a rank of 470 and made into India's best college, which is TS Chanakya. So we'll talk about his journey, like and all the nuances of like sailing and all. So let me introduce our achiever, Ayush. Thank you so much, sir. I really feel flattered at the moment. It's a privilege. Yes, it feels good to be on this podcast, and thank you so much, sir, for inviting me. Actually, I'm quite much willing to be a part of this, and let's explore how and where we head. For all the chotus of India, right? Who are Yes, aspiring to become a sailor, right? exactly. Or Jack Sparrow. Like, let's start the journey. So, Ayush, कैसा है life अभी तक after Drona classes? So life has changed a lot actually. मैं बोलूँ तो काफ़ी I would say a paradigm shift in my life. I was a very studious guy. And abhi now I am like somebody who is crossing the winds and doing the rollings and pitchings in the ocean. So yeah, I think काफ़ी 360 degree shift हुआ है life में. So, let me cut this journey into three parts, like life at Jamshedpur, Drona classes. Second would be life at TS Chanakya, and third would be your sailing part. So हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग पार्ट से ही द्रोणा क्लासेस तक आएंगे, उल्टा जर्नी हम लोग ये देखेंगे. सो you passed out from TS Chanakya on the year 2022. 2022, yes. And 2022, and this podcast is shooted the shooting is done on 2025. So can I say how many countries you have traveled as of now in this career? So far, I would give a rough estimate around 26, 27. That is the number of countries covered so far. And yes, I would say experience-wise, the first, it has been I was at sea for 1 year. So it was like a very, very good experience, I would say. Um, Combination of happy moments, combination of challenges and tough moments also. It was 13 December 2022. First, I joined my first ship on that day. Okay, there was a service vessel. It came and we all there were 4 to 5 people, including me, and हम बैठे हैं उसमें and हम गए हैं vessel के पास. Vessel was an anchor. कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ मैंने आज तक लाइफ में देखी नहीं सर. Literally, it was like 250 meters was the first vessel. 250 meters from the ground level. No, the lengthwise. The length we call it as LOA, length overall. So 250 meters was the length of the vessel. That is like a big metal box. समझ नहीं आ रहा है कि सामने क्या है और पीछे वाला हिस्सा कौन सा है. Like literally was that, and we went and there was like some crew on the boat, and उन्होंने हमें pick up किया, and I could see it was all metal, completely metal. Didn't find a single Indian including apart from me. There was not a single Indian on ship, so I could feel कि मैं कहाँ आ गया हूँ, where am I doing, because I was a very studious kind of guy and got into this. So वो एक चीज़ था. Within this 1 year, my training, my routine was something like morning 4 o'clock I used to start my day. Okay. So morning 4 to 8 I used to be on watch with my chief officer. Okay. Then after 8, half an hour we used to get for break, like breakfast and all. From 8:30 to 12 o'clock we used to go on deck. वहाँ पे जो भी दिन का चिपिंग पेंटिंग काम हो गया, रूटीन जॉब्स हो गए, वो करने थे. 1 घंटा का ब्रेक मिलता था. 12 बजे से 1 बजे का लंच हमारा होता था. From 1 p.m. to 5 p.m. again on deck. Then come back at 5 p.m. Have my dinner at 6 o'clock in the evening. That is what people do usually when they are out at sea. फिर 6 बजे डिनर किया, 6:30 बजे तक वापस ब्रिज पे गया, 9 बजे तक वहाँ पे वॉच रखा, एंड फिर व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक टू माय रूम एंड थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो वो पेंडिंग काम्स थे वो कंप्लीट किया एंड गो ऑफ टू स्लीप. दैट वाज हाउ माय डे वाज. Okay. So Ayush, the first question, like मैं इसको ना एक इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ कि the first जब आप फर्स्ट टाइम सेलिंग के लिए जा रहे हो
ठीक है, तो you said that you started from Singapore, Yes. right? And the entire route was Singapore. Okay, so my route was from Singapore. The vessel was on anchorage. उसके बाद फिर वहाँ से हम गए थे जबल अली, that Okay. is Saudi Arabia. Saudi. And from there we went to I guess it was one port in Europe, which I think that was let it just keep it as Sure, sure, port. sure. I'm not able to recall And that. you were actually involved with I mean, what kind of ship you were taking to? मतलब what kind of Vessel. stuff है there? हाँ, vessel. In my company, we only has this oil tankers. So अच्छा, we are dealing with cargoes, liquid cargoes. Okay. So, can you please mention your company's name? Yeah, I'm in Tom Shipping. Okay, Tom Shipping is a company based on, That is in Denmark-based company. and you got placed through TS Chanakya only. Yes. So, like, let's come back to the TS Chanakya life, right? How many students were there in your batch, like in BSc Nautical Science? Which you pursued? 180 students. 180 80 students. students, yes. And how was life in TS Chanakya? So, can you tell me about the daily routine in TS Chanakya? Okay. Okay. So my day used to start at morning 5 o'clock in TS Chanakya. Okay. Morning 5 o'clock we used to wake up, and by 5:30 go for a PT or go for swimming and whatnot. By 6 o'clock we used to wind up. Then 6 o'clock we came back, did our morning ablutions, finished everything. By 7:30 sharp we have to be there for breakfast. 7:30 to 8 breakfast. From 8:30 to 12 o'clock we had our scholastic hours. So from 12 o'clock till 1 o'clock break for 1 hour for lunch, then followed by 1 p.m. to 5 p.m. again our scholastic hours. After that we used to head for our parade. Every day we used to go for parade, 5:30 to 6 o'clock parade. Then again 7:30 dinner, करते करते 8 बजे तक वापस रूम पे. अब इसमें मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ कि टीएस चाणक्य जब आप पहला दिन गए थे, ठीक है, हाँ सर. तो इट वाज अ वेरी न्यू लाइफ. यू वर गेटिंग फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट? Yes. सो कैन यू टॉक अबाउट द जेंडर रेशियो इन टीएस चाणक्य, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज? ओके, बेस्ड ऑन द करंट रेशियो, करंट स्टेटस, अभी तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई है, काफ़ी बढ़ गए होंगे. मेरे टाइम पे आई जॉइन इन 2019. तो उस टाइम पे इन माय बैच आई ओनली हैड 3 गर्ल्स. सो Okay, so that time also girls were a part of the merchant navy journey, which Yes. eventually now has grown to a bigger ratio, यस. right? Okay. So रैगिंग वैगिंग हुई थी यार टीएस हाँ चाणक्य सर. में? तो क्या हुआ, थोड़ा वो सब भी बता दो. रैगिंग तो we don't call it ragging actually. They don't want to prove it or put it as punitive punishment. वो हमारा एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ही होता है. Okay. सो ऐसा होता था कि लेट्स से कोई हमारी अटेंडेंस होती थी, दिन में 3 बार अटेंडेंस होती थी. सुबह में, दो ड्यूरिंग द स्कोलास्टिक आवर एंड ऑल्सो आफ्टर द बिफोर द डिनर. तो इफ एनी गाय हैज इज मिसिंग फ्रॉम द बैच, तो everybody used to get punishments उसके लिए. मिसिंग मतलब वो कहाँ जाता था? सर लेट्स से he has वो सो गया like something, अच्छा, he तो उसके just लिए went to सबको- room and he slept or something. तो वहाँ पे it will be like कि if one guy is missing तो सारे बैच को, because that is how they put this in our mind कि कल को शिप में भी एक इंसान की गलती से पूरा जहाज भी डेंजर पे आ सकता है. Okay. बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन. सो हमें उस टाइम पे हमारे सीनियर्स ही थे जिन्होंने हमें पनिशमेंट्स दिए थे. एंड पनिशमेंट यूज्ड टू बी लाइक, नॉर्मल बोलूँ तो पेबल्स के ऊपर मैं पुशअप्स करा दिया, या फिर नी वॉक करा दिया, फ्रॉक जंप करा दिया, एंड पूरे कॉलेज का सर्कमफ्रेंस दौड़ा दिया, कॉलेज का सर्कमफ्रेंस फ्रॉक जंप करा दिया. तो इट वाज टू बी लाइक दैट. खाली रैगिंग ही करते थे कि सीनियर्स एग्जाम्स में भी हेल्प करते थे? ऐसा कहा जाता है वहाँ पे, एंड दैट इज़ हाउ द ट्रेडिशन वाज कि जो सीनियर सबसे ज़्यादा रैगिंग करेगा वही सीनियर आगे जाके सबसे ज़्यादा हेल्प भी करता है. अरे वाह. So it was like कि this continued in my first year. This continued until let's say 6 महीने तक ये चीज़ चली. उसके बाद फिर they felt कि हम अब we are, because in college we have third termers, second termers, first termers. मतलब अब तुम लोग भी रैगिंग कर सकते हो जूनियर्स? Third termers are the kings and the queens. Second termers are like the prince and the princesses. Okay. And the first termers are way below animals. हाँ. That is how we are treated. Okay. And शुरुआत के 6 महीने तो ऐसे ही हुआ, बट उसके बाद फिर चीज़ें इंप्रूव हो गई. देन वी वर ऑल नॉर्मल. फिर Alright. हमें वहाँ पे चलना अलाउड नहीं था. जहाँ भी जाना है दौड़ के जाना है. खाना खाने के कैंपस बाद में?
हाँ, लाइक अगर सीनियर ने आपको देख लिया तो यू हैव टू रन एंड यू हैव टू गो एनीवेयर यू वांट. आप स्कोलास्टिक जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो. तो इस ये कल्चर हमेशा के लिए अभी भी है क्या टीएस अभी भी चाणक्य चलता का? है. सो कैन आई से इंडिया का अभी जो रैंक 1 कॉलेज है मर्चेंट नेवी का, लाइक कैन यू नेम 3 or 4 कॉलेजेस व्हिच अकॉर्डिंग टू द रैंक्स? गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो फिर टीएस चाणक्य इज वन ऑफ मुंबई व्हिच इज योर कॉलेज. which is my टीएस चाणक्य में तुम्हारे बैच में सबसे जो खराब रैंक था वो कितना था? जैसे तुम्हारा रैंक तो 470 था. व्हाट वाज द लास्ट रैंक जो एंट्री पॉइंट के लिए बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए? बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए इट वाज कि आप कैटेगरी वाइज हमारे रैंकिंग बेसिस पे हमें कॉलेज मिलती थी. तो एज आई वाज इन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, तो हमारे लिए 500 600 तक मैक्सिमम था. ओके, फॉर जनरल कैटेगरी आप बोल रहे हो ऑल इंडिया रैंक जिसका 500 के अंदर है वही बीएससी नॉटिकल साइंस मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा आयुष, अभी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ये पॉडकास्ट बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे, सो मर्चेंट नेवी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, which is one is BSc Nautical Science, yes, and one is BTech Marine Engineering. Marine engineering, yeah. Right. थोड़ा सा उसके बारे में BSc Nautical Science किसको एस्पायर करना चाहिए और BTech Marine Engineering किसको एस्पायर करना चाहिए, और बाकी जो कोर्सेज है थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहले विल स्टार्ट विद BSc Nautical Science कि उसका हायरकी क्या होता है, उस कोर्स के थ्रू मैक्सिमम जो पोस्ट रहता है वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है. ठीक है. ओके सर, सो पहले तो आई जस्ट टेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से काम कर रहा है. हमारे शिप पे वी हैव गॉट 3 डिपार्टमेंट्स. Okay. One is the deck department, then engine department, and one is the galley department. So for the deck departments, the people who get into the deck departments, they are usually the officers who basically go there, and it will be like BSc Nautical Science या फिर DNS एक प्रोग्राम होती है, Diploma in Nautical Science. One is Bachelor in Nautical Science and Diploma in Nautical Science. ये 2 है प्रोग्राम जिनके थ्रू आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो. Okay. फिर मरीन इंजीनियरिंग जो है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, दैट विल लीड यू इनटू एज अ इंजन रूम डिपार्टमेंट में फिर आप ज्वाइन करोगे. मतलब शिप में कुछ भी डिफॉल्ट्स होगा, मैकेनिकल डिफॉल्ट्स होगा, वो डिपार्टमेंट इंजन का पूरा जितना भी काम है, जनरेटर्स हो गए, ऑक्सिलरी इंजन्स हो गए, एवरीथिंग विल कम अंडर द इंजन रूम. तो दैट इज वन थिंग. ओके. गैली डिपार्टमेंट के लिए वो होटल मैनेजमेंट के थ्रू होती है. ओ मतलब शिप में जितने भी लोग रहते हैं वो उनका जो खाना वगैरह है, वो डिपार्टमेंट. वी हैव द कुक, वी हैव स्टीवर्ड एंड ऑल दैट. उसके लिए फिर आपकी वो दे हैव टू गेट ट्रेन्ड इन दैट वे. ठीक है. बाकी जहाँ तक सवाल है हायरार्की की, सो लेट मी टेल यू अबाउट द डेक डिपार्टमेंट. आई बिलोंग टू नॉटिकल साइंस, राइट? यस. सो बीएससी नॉटिकल साइंस के थ्रू आप डेक डिपार्टमेंट हमने ज्वाइन किया. फिर I am a part of that. So the hierarchy is like, first you will join as a cadet or a trainee. Okay. So you will have to do training for, let's say, 12 months if you have done BSc Nautical Science, and you will be required to do training for 18 months if you have done DNS. Okay. That is Diploma in Nautical Science. So you will do your cadetship for 1 year or 1.5 years. Okay. Then you have to appear for examinations, and after that the promotion is like 3rd officer. And then you will be sailing for a couple of years, and then you'll become 2nd officer, chief officer, and captain. So captain is the overall in charge of the vessel. You know, everything will come under him. थोड़ा सा कैप्टन के बारे में बताओ, उसका लाइफ क्या है, उसका वर्क प्रेशर क्या है, कैप्टन का लाइफ कैसा होता है? अगर मतलब दैट इज समथिंग दैट यू विल बी अचीविंग आफ्टर फ्यू इयर्स, बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, जो भी कैप्टन्स आपके साथ सेलिंग में रहे हैं, हाँ सर, थोड़ा सा उनका लाइफ के बारे में बताओ. यू कैन टॉक अबाउट एक lump sum approximate salary also which captain can earn, right? Yes. और responsibilities क्या रहती है उसका? This is actually the most curious kind of question जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं. And captain's life is, I would say, is a mixture of emotions, I would say, because काम का pressure है, but साथ ही साथ you know, you have that command on the vessel. You know, you are the head. There is nobody at sea who is greater than you. If you will say anything, that is the final wording, and nobody can overrule it. So as a captain, you have got a lot of responsibility, and I came across some amazing captains जिनके साथ मैंने काम किया है within my training periods, and they really taught me a lot of things. पहली चीज़ जो मैंने उनके थ्रू सीखा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. Literally, a guy who is mopping the floor or a guy who is washing a utensil, I have seen him literally, a guy who is in such a high position. जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आते हैं डेक पे बॉयलर सूट पहन करके हमारा हाथ बटाने के लिए. ओके. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. तो लीडरशिप क्वालिटीज़ एक
दिखता है काफ़ी अच्छे से. And based on the pay scale, like for a captain, this differs from vessel to vessel. ओके. Like if you and general बोलूँ तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे पे ज़्यादा है. So captain का if I tell you, for a vessel that is in dry fleet, जो ड्राई कार्गोस कैरी कर रहे हैं, कंटेनर वेसल्स हो गए, बल्क कैरियर्स हो गए, तो वहाँ पे कैप्टन्स wages will go up till $10,000 to $12,000 per month. $10,000 means 10 lakhs in Indian. Roughly, yeah. Okay, 10 lakhs per month. Per Right. month, yeah. Okay. Now, if I talk about the liquid cargoes, like the cargoes, the vessels that are into liquids and all that, Right. जैसे मेरी कंपनी में थी, तो उसमें था कि कैप्टन सैलरी विल रेंज बिटवीन लेट्स से $14,000 to $17,000 per month. एंड देर इज़ वन कैटेगरी ऑफ वेसल जिसको केमिकल कार्गोज, जो केमिकल कार्गोज कैरी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाई सैलरी रहती है कैप्टन की, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है. So you are into a part of the chemical. नो, इन माई कंपनी वी हैव केमिकल एंड ऑयल बोथ. तो वो चीज़ है. एंड So you're saying that in that case, 17,000 euro would be a rough. $70,000. Yeah. Sorry, dollars would be a monthly salary. Monthly salary for a $17,000 means 17 lakhs, right? रफली. ओके. एंड ये बताओ कि आप जैसे बोले कि कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा शिप के लिए, सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कैप्टन के लिए? मतलब एक कैप्टन का जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आता है वाइल सेलिंग? क्या क्या टफ डिसीजंस लेना पड़ता है कैप्टन को? यस. क्योंकि पूरा का पूरा क्रू मेंबर्स, पूरा का पूरा शिप उनके ऑर्डर्स पे ही डिपेंडेंट रहेगा. कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सो फ्रॉम कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इट इज़ लाइक चैलेंजिंग यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज यू हैव टू हैंडल देयर आर 23 men वर्किंग अंडर यू. ओके. You know, you have to make sure कि they are working and they are doing good job and they are helping you out. दूसरी चीज़ क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी जैसे? तरीके का प्रॉब्लम, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंस्पेक्शन गोइंग ऑन एंड यू नो सम डिफिशिएंसीज फाउंड, लेट्स से कोई लाइफ सेविंग अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम हो गया, ओके. या जहाज के नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस जॉब्स में कोई प्रॉब्लम्स हो गए, एंड प्रॉब्लम इस कदर हो गया कि यू नो द वेसल विल बी डिटेन्ड और देयर विल बी सम प्रोटेस्ट्स, यू नो. तो वहाँ पे क्या है कि nobody is going to ask any officer और nobody is going to ask any engineer कि क्या हुआ है. Captains will be the first guy जिनसे पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम है, and how they are going to resolve it. तो वहाँ पे you know he is always on the toes. He has to be. There is no other option for him. कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कभी बहुत ज़्यादा हाई वेव्स आ रहा है और सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गया है, मतलब शिप का जो रोलिंग वो बहुत फास्ट हो गया है, Yes. तो उस तरह का सिचुएशन में कैप्टन का रोल क्या रहता है? सर एज अ कैप्टन अगर हम देखेंगे तो Emergency बेसिकली हम, हाँ, इमरजेंसी के केस में क्या है, कैप्टन विल बी ऑन द ब्रिज, जिसको हम लाइक ही ब्रिज इज़ द एरिया जहाँ से नेविगेशन सारे कंट्रोल्स वहाँ पे होते हैं. Okay. तो ही विल टेक चार्ज देयर एंड ही विल बी इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑफिसर विल असिस्ट हिम कि वेसल को इमरजेंसी के टाइम पे वी हैव गॉट इमरजेंसी चेकलिस्ट्स, हमारा कंटिजेंसी प्लान्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना होता है उस टाइम पे. चाहे कहीं ऑयल स्पिल हो गया, कहीं फायर ब्रेकआउट हो गया, कहीं पे कोलिजन हो गया, कहीं पे ग्राउंडिंग हो गई शिप की, तो वो सारी चीज़ें वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर चेकलिस्ट. एज अ कैप्टन अगर रफ वेदर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप ये सोचोगे कि हाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेसल एंड यहाँ से विंड्स आ रहे हैं, तो अगर वेसल इस तरीके से है, विंड्स इधर आ रहे हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जैसे ज़्यादा रोलिंग होगी. एज अ नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे कि आपको वेसल को इस तरीके से पोजीशन करना है कि वेव्स से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े एंड यू कट थ्रू द वेव्स. ये वेव्स कितना बड़ा होता होगा रियल टाइम में? सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितने बड़े देखे हैं, आई हैव सीन रफली अराउंड 10 to 15 मीटर्स के बीच में. दैट इज़ द हाइट. दिस वाज एट व्हिच प्लेस? आई एक्सपीरियंस दिस इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ अटलांटिक. वहाँ पे ज़्यादातर मौसम ख़राब ही मिलेगा आपको. राइट. तो उस तरीके से. और अभी क्या मतलब अभी वी आर इन द 2025, मतलब ये काफ़ी एडवांस्ड वाला एरा है. जैसे पहले सुनने में आता था कि टाइटैनिक डूब गया, अभी कोई चांसेस है मिसहैपनिंग होने का या एक्सीडेंट्स होने का बड़े शिप्स का? एक्सीडेंट्स और किस रीजन से एक्सीडेंट होगा ये आप बता सकते हो? सर एज पर जो डेटा अभी तक रिलीज़ हुई है, और हम हमेशा ये सब चीज़ों पे बात करते हैं व्हेन वी आर आउट एट सी, कि
जो भी हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे या कुछ भी, 80% वुड बी ह्यूमन एरर. अगर Okay. टाइटैनिक की बात भी किया जाए तो वहाँ पे भी ह्यूमन एरर ही था, क्योंकि द ऑफिसर ऑन द वॉच और whoever was there, तो उन्होंने पैसेज प्लान प्रॉपरली नहीं किया होगा या फिर प्रॉपर लुकआउट नहीं रखा होगा, जिस कारण के ऐसा सिचुएशन आ रहा है. जहाज का कहीं भी जा करके कोलाइड कर जाना, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक जहाज जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो चीज़ पहुंचने के लिए भी टाइम लगेगा, वो चीज़ होने के लिए भी टाइम लगेगा. अगर आप विजिलेंट नहीं हो उस टाइम पे, तो इट विल बी वेरी वेरी मच ऑब्वियस कि आपके ऊपर ही ब्लेम है, बिकॉज यू आर नॉट विजिलेंट और यू हैव नॉट केप्ट अ प्रॉपर लुकआउट देयर. तो वो एक तो चीज़ आ ये जाता मतलब है. आज का डेट में ये काइंड ऑफ मतलब 95% चांसेस है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है, बिकॉज इतना टेक्नोलॉजी आ गया है हाँ. ड्यूरिंग द सेलिंग एंड ऑल. यस. ओके. नाउ लाइक अदर चैलेंजेस लाइक अभी वो सब आप सुनने में आता है कि पायरेट्स ये सब अभी सच है कि मतलब नहीं होते हैं सर, होते ऐसा हैं? होते हैं. ओके. एंड इसको कौन डील करता है? अगर पायरेट्स कभी मतलब ड्यूरिंग द जर्नी कभी आता है तो उसको कौन ये करेगा? पायरेट्स का बेसिकली क्या है सर, लाइक यूजुअली देयर आर सम रीजन्स इन साउथ अफ्रीका, वन इज सोमालिया आउट ऑफ इट. सोमालिया. सोमालिया हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, एंड दीज आर द एरियाज जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज कहते हैं, HRA एरियाज कहते हैं, हाई ओके. रिस्क ओके. एरियाज. So far, like whenever the vessel is passing through that area, तो it is like we follow a plan, vessel hardening plan कहते हैं उसको, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने वेसल को पहले पूरा प्रोटेक्ट करते हैं. वी नो कि हम शायद पायरेट को जहाज पे चढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, बट हम उसका चढ़ना को डिले कर सकते हैं. We can delay them getting boarded, and how we do it, we basically rig a barbed wire and we electrocute it. ओके. Yes, or sometimes we are using the fire pumps, and we are just using the fire pump, and वो fire hoses के through काफ़ी high jet speed पे वो पानी बाहर आती है. इससे क्या होता है कि it causes an obstruction to somebody who is trying to board the vessel. That is how we are doing it. Now in case अगर जहाज पे पायरेट आ गए, for example, अगर वो चढ़ गए, तो पहली चीज़ तो है, जब वी नो कि वो चढ़ गए हैं, क्लोज आ जाएंगे, तो द कैप्टन विल गिव अ पर्टिकुलर अलार्म, एंड हम एवरीबडी, देयर इज़ अ रूम इन शिप जिसको हम सिटाडेल कहते हैं. इट्स अ वेरी सॉलिड रूम, मेटल, हाईली मेटल रूम है. उसको आप अंदर से बंद कर सकते हो, अंदर से आप सब कोई आ सकते हो, बाहर से कोई उसे खोल नहीं सकता. खोल नहीं सकते. एंड वी हैव इमरजेंसी स्टेयरिंग ओवर देयर, वी हैव ऑल द प्रोविजंस, खाने पीने का सामान, तो वी ऑल कैन गो देयर. एंड पायरेट अगर आ भी जाएंगे तो हम मेन कंट्रोल स्टेशन से है नहीं वहाँ पे, तो व्हाट दे विल डू, यूजुअली उनका मोटिव ये रहता है, दे विल नॉट हार्म यू, दे विल कम टू, मे बी दे विल जस्ट कम टू आस्क फॉर सम मनी एंड राशन वगैरह, बिकॉज Alright. सोमालिया एज अ कंट्री इज अ वेरी पुअर कंट्री. Alright. और लाइक ठीक है. अच्छा, एनी अदर चैलेंजेस मतलब लाइक एक हो गया पायरेट्स वाला, दूसरा हो गया कि एक्सीडेंट वाला, कोई अगर मतलब माउंटेन टाइप का कुछ अगर आ जा रहा है, यस एनी अदर काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हिच अ कैप्टन हैज टू हैंडल इन हिज जर्नी? सर, फ्रॉम द पोर्ट ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑलराइट. लॉजिस्टिक वगैरह का लॉजिस्टिक्स वगैरह वो में, वही डील उसमें करता है. कैप्टन्स को ही, लाइक दे हैव टू डील विद दैट. ऑलराइट. एंड इज इट ट्रू कि like there is a saying, a captain has a wife at every port? तो मतलब ये भी थोड़ा सा मैं इस पे भी आऊँगा कि ऑब्वियसली कैप्टन एक सर्टेन एज के बाद ही होता है, राइट? यस. सो एक कैप्टन का लाइफ भी है कि मतलब वो काफ़ी टाइम समुंदर में ही रहता है, राइट? सो इफ़ यू वांट. दिस इज एक्चुअली, मैं कह सकता हूँ कि इट इज़, अभी के डेट में तो इट इज़ पार्शियली ट्रू. Partially true. Partially true. All right. But not wife literally. There are certain things I think you are not मतलब gonna. कैप्टन चाहे तो किसी भी कंट्री में उसके पास मतलब कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि वो कंट्री को विजिट नहीं कर सकता है. हाँ उसके पास सारा वीज़ा रहता है ना? नहीं, वीज़ाज नहीं है सर, एक्चुअली शोर लीव्स हमें मिलते हैं. लाइक Okay. लेट्स से वेसल कहीं पे भी जा रही है, एंड वहाँ पे लेट्स से लोडिंग ऑपरेशन, डिस्चार्जिंग ऑपरेशन में 3 से 4 दिन वेसल वहीं पे रहने वाला है. तो उस केस में आप जा सकते हो, यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट प्लेस, एंड यू हैव टू कम बैक ऑल्सो आफ्टर लेट्स से कपल ऑफ आवर्स. और कैप्टन के पास मतलब क्योंकि ये भी एक चैलेंज रहता है कि मान लो कोई भी कंट्री में जा रहा है तो उसका कंट्री का करेंसी होना चाहिए. जैसे आप लोगों को अगर कभी किसी कंट्री में घुस रहे हो और घूमना है तो उस कंट्री का करेंसी होना चाहिए, तो इसका कौन इंश्योर करता है? नहीं सर, एक्चुअली दिस इज अ मिथ, क्योंकि वी डील विद डॉलर्स. ओके.
तो कैप्टन को कंपनी विल गिव सम ओके कैश इन हैंड. तो लेट्स से अगर आप जहाज पे हो और आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, तो यू कैन आस्क द कैप्टन फॉर सम कैश. ओके आपको जरूरत पड़ेगी एंड द कैप्टन विल एडजस्ट दिस विथ योर नेक्स्ट वेज में ही विल एडजस्ट दैट. ओके सो यू कैन टेक द डॉलर्स. वहाँ पे जा करके आप डॉलर्स में, तो वहाँ लोकल मार्केट में यू कैन एक्सचेंज इट. वहाँ का लोकल करेंसी पे आपको मिल जाएगा एंड यू कैन जो भी आपको चीज़ें लेनी है, घूमना है, यू कैन एक्सप्लोर दैट. ऑलराइट. वो चीज़ है. मतलब देखा जाए तो ये उन बच्चों के लिए ये करियर बहुत अच्छा है जो एडवेंचर पसंद करता है, ठीक है, ट्रैवल पसंद करता है. एंड एज यू वर सेइंग बैक द स्टेज की मर्चेंट नेवी इज़ अ करियर जो एक एस्पिरेंट है वो 30 to 35 के एज में एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस वो बना सकता है. यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स आल्सो. इज इट ट्रू दैट नंबर्स? Yes, sir, that is true. So can you share the numbers, like, if it's okay with Okay, you? the thing is कि like it is very true that you know, आप काफ़ी कम टाइम में you can make a good kind of corpus. Let's say 10 years, 15 years down the line, if you're sailing. So by the time you are, let's say 40 or 35 के बीच में अगर आप हो, if you're starting from 25, तो by that time maybe like let's say 43 CR or something, that will be the worth 40 that to you 50 can crores आप you सेव can कर make सकते that हो. kind of worth. अच्छा, ये भी है कि जो मतलब एक कैप्टन को जो सैलरी मिलता है वो क्या टैक्स कट के मिलता है कि वो पूरा सैलरी को मतलब नहीं सर, एक्चुअली द थिंग इज कि फॉर अ कैप्टन और फॉर एनीबडी ऑन वेसल, सिंस वी आर ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 6 months हाँ इन, तो उस केस में क्या है, वी आर हैविंग दैट NRI वाला स्टेटस. ओके सो व्हेन वी गेट दैट NRI स्टेटस, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर यू नो not included in that your liability to pay tax. So we don't have any obligation to pay that. जो So what you're earning is what your CTC is, that is your in hand salary. अच्छा वो पूरा का पूरा अमाउंट आप बैंक में विदाउट टैक्स आप मतलब रख सकते हो. Exactly. ओके. और एक चीज़ है, जैसे ये भी मैंने सुना है कि एक सेलिंग तो पूरा साल भर नहीं होता है. सो जैसे कितना मंथ एक साल में, लाइक कितना मंथ सेलिंग होता है और कितना मंथ मतलब नॉन सेलिंग या मतलब छुट्टी वुट्टी रहता है, ये थोड़ा सा बता सकते सर दिस विल डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी में इट इज़ ऑल अप टू मी. अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया एज अ जूनियर ऑफिसर. फॉर अ जूनियर ऑफिसर यू हैव इन आवर कंपनी इट इज़ 6+1 6-1. तो इधर आप 5 महीने करोगे या 6 महीने करोगे या 7 महीने. मतलब 6+1 का मतलब है कि अब 6 महीना सेलिंग किए हाँ. और 1 महीना. नहीं सर, 6+1 का मतलब हो गया कि लेट्स से आपके 6 months के कॉन्ट्रैक्ट थे. हाँ बट बाय द टाइम आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, लेट्स से उस वक्त कोई पोर्ट नहीं है, आप समुद्र के बीच में हो, हाँ तो ऑब्वियसली आप वेट करोगे जब तक पोर्ट आएगा. हाँ. ये भी देखा जाएगा कि वहाँ से साइन ऑफ पॉसिबल है कि नहीं उस पोर्ट से. तो रफली 7 महीने हो जाते हैं. अगर आपने 7 महीने सेल किया तो महीने के बाकी के 5 महीने आप घर पे रह सकते घर पे रह हो. सकते तो छुट्टी इज ऑल अप टू यू इन माई कंपनी. ओके. राइट. और ड्यूरिंग दैट 5 months उस समय भी आपको पे मिलता है कि यू आर गेटिंग पेड फॉर द 7 months ओनली? दिस इज एक्चुअली अ मिथ. वो नहीं होता सर. वी आर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज. ऑलराइट. ये सभी के लिए अप्लाइड होता है? हाँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी. सो नाउ थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं यार, ठीक है? सर बिल्कुल. आयुष इन क्लास 7-8 क्या था आयुष, कैसा था? सर एक लड़का था, यूज्ड टू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड सिर्फ किताब के साथ घूमते रहता था दिन भर. कभी इन योर वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम कभी सोचा था कि मतलब सेलिंग करेगा लाइफ में, कैप्टन की तरफ जाएगा? टू बी ऑनेस्ट, इस करियर को लेकर के आई गेस जो क्लैरिटी मुझे आफ्टर आई गॉट एनरोल्ड विद दिस इंस्टीट्यूट, द्रोणा इंस्टीट्यूट, आई थिंक उसके बाद ही पता चला. उसके पहले तक नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आई थॉट कि मैं एयरफोर्स जानता था, डिफेंस जानता था. क्या सोचा था मतलब 7, 8, 9, 10 में क्या सोचा था, क्या करना है? एक्चुअली सर ऑनेस्टली उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा था मैंने. लिटरली आई वाज जस्ट सिर्फ ये था कि हाँ एग्जाम्स करने हैं, ये करना है, वो करना है, खेलना है थोड़ा बहुत. दैट वाज हाउ माय लाइफ. टॉपर बच्चा था कि एवरेज वाला था? सर लगेगा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ. टॉपर था? आई थिंक कह सकते हैं. कह सकते कि मतलब क्लियर कर दे यार, मतलब फर्स्ट रैंक वाला था क्या बच्चा? टॉप 5. अरे भाई सही है. तो 10th के बाद तो चलो यू जॉइंड आवर इंस्टीट्यूट. मुझे याद है कि लाइक एक बहुत ही होमली सा इन्वायरमेंट हुआ करता था. हम लोग का क्लासरूम्स होता था, बच्चे लोग दुष्ट भी रहते थे. तुम लोग कुछ आते थे जो पढ़ते वाले थे. तो हम लोग का कुछ मतलब हम लोग भी एज अ टीचर कभी सोच नहीं पा रहे थे कि मतलब जाएगा कहाँ, राइट? सो मुझे याद है कि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यू गॉट एनरोल्ड into our IIT training program. Yes. And
तुम अच्छा कर भी रहे थे एंड देयर वर मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो। और इवेंचुअली क्या हो रहा था, जब हम लोग लास्ट के तरफ जा रहे थे, राइट, तो उस समय एक कन्फ्यूजन तुम्हारे में अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट हुआ था कि अब कुछ नहीं होगा। एंड तब तक हम लोग मर्चेंट नेवी के बारे में मतलब उतना ज़्यादा श्योर नहीं हुए थे। यस सो कैन यू थ्रो सम लाइट उस जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन कर कि क्या चल रहा था एंड कैसे हुआ वो? सर, शुरुआत से आते हैं तो 10th तो हो गया, उसके बाद फिर इट वाज कि देयर इज़ अ नीड टू गेट इनटू सम कोचिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज़ Okay. ऑब्वियसली 11th-12th में देयर इज़ अ वेरी लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। और एक चीज़ है, जमशेदपुर ऐसा जगह है जहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है एग्जैक्टली कि या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, राइट। और लाइक यहाँ पर और एक थर्ड करियर ऑप्शन इज टिस्को अप्रेंटिस एट दैट टाइम। इसके अलावा कोई और मतलब कोई और प्रोविजंस ही नहीं थी कि बच्चे सोच पाए फॉर करियर्स लाइक होटल मैनेजमेंट, डिफेंस, मर्चेंट नेवी एंड सो ऑन, राइट। सो यू आर ऑल्सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली, लाइक तुम लोग के पहले से कोई सजेस्ट किए थे कि यही करना है, इंजीनियरिंग करना है, वैसे घर में कुछ हो रहा था बात बात? सर, घर पे बात होती थी तो इट वाज लाइक माय डैड ऑलवेज encouraged मी फॉर फोर्सेस गेटिंग इनटू आर्मी या एयरफोर्स या राइट, नेवी। उस चीज़ को लेके बात होती थी, या राइट। इंजीनियरिंग मुझे पर्सनली मुझे नहीं करना था, आई वाज नॉट इनटू दैट। बट या ऐसे मैं जर्नी था कि लाइक 10th के बाद ज़रूरत पड़ी थी ट्यूशन की। हम्म, तो द्रोणा क्लास का मुझे याद है, फर्स्ट डे आई केम विथ माई डैड एंड आई कुड सी देयर वाज सम जीनियस मैन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे अप टू 7 डिजिट और 8 डिजिट और डेसिमल। अच्छा, यू वो रिमेम्बर देख दैट करके पार्ट? तो वो देख करके तो सर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने आज तक लाइफ में कभी देखा ही नहीं लिटरली, एंड सर आप ही थे वो तो वो चीज़। मैजिक था। So सो then I got into Drona classes अ and मेसी रूम, राइट, ऐसे रिटन छोटा सा में। रूम था सर, आई थिंक कितना हाँ, 10 by 10 का और रूम हर था जगह वो। कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए एंड थे, इट वाज लाइक पागलों बोर्ड्स, का जगह। प्राइमरीली बोर्ड्स के लिए था। बोर्ड्स तो ठीक है, वो तो निकल हम्म, गया। उसके बाद ये था सवाल कि करना क्या है लाइफ में, बिकॉज आई वॉज विथ यू इन दिस IIT वाला बैच। तो क्वेश्चंस वगैरह आपके टेस्ट सीरीज हो गए, आपके जो स्टडी मटेरियल हो गया, दैट वाज समथिंग जो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं तो इट विल हिट, कहीं ना कहीं यू एम फॉर द मून एंड यू लैंड अप विद सम स्टार्स। तो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द थिंग। that only happened with you only. Journey या was towards the IIT dream and eventually कहाँ वो मर्चेंट नेवी तो ड्रीम का। मैं वही चीज़ बोल रहा था सर, लाइक दैट इज़ हाउ इट इज़ सेड कि यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ कभी कभी ऐसा होता है ना, यू जस्ट गेट दैट फीलिंग कि you are not going to choose the career, many times career is choosing you, डेस्टिनी। and that is how it is like I think मैंने 10 एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे आफ्टर माय 12th एग्जाम। या इट वाज बिटसैट था, या कॉमेट वेस्ट के बंगाल था, जॉइंट वेस्ट IITJ and बंगाल I remember IIT, those things. एनडीए भी था वन ऑफ दैट। सो बट नहीं हुआ एट द एंड, एंड फिर बाद में आई वाज थिंकिंग कि यार पता नहीं लाइक वेयर आई You एम came गोइंग टू one day हेड, and like एंड आई वाज टेलिंग यू कि सर हाँ, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने काउंसलिंग लिया था एंड इट वाज IMU CT, दैट वाज समथिंग जो मुझे आई गेस मैं पहली बार सुन रहा था। मुझे आई गॉट रियली क्यूरियस, एंड उसके बाद चीज़ें जिस तरीके से हुई है, इट ऑल हैपेंड वेरी रैपिडली। डॉट्स वेर कनेक्टेड। जानते हो तुम्हारा जो IIT वाला प्रिपरेशन था वो इवेंचुअली हेल्प किया, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि IMU CT का पैटर्न में आज यू आर गेटिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यस जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। यस तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आज का लेवल थोड़ा सा मतलब नॉट लाइक IIT मेंस, थोड़ा सा इजी होता है, बट अब तुम्हारे समय में जितने एस्पिरेंट्स बैठ रहे थे इस एग्जाम में, अब वो नंबर्स काफ़ी बढ़ गया ड्यू टू इंस्टाग्राम एंड रील्स। मतलब अब तुम्हारे ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम वगैरह में रील्स शेयर कर रहे हैं कि लाइफ एट सी और डिफरेंट कंट्रीज जो आप विजिट कर रहे हो, ये बहुत लोगों को शायद पसंद है कि ट्रैवल करना है। एट दिस एज आप 26 कंट्रीज घूम चुके हो, यू आर थिंकिंग ऑफ अ करियर कि जहाँ पे आप एक समय में 30-35 का एज में आप BMW या ऑडी आप ओन करोगे, यू विल बी हैविंग अ बिग बैंक अकाउंट, आई मीन कॉर्पस, 50 to 60 करोड़ का आप कॉर्पस बना सकते हो। एट 35 एज कौन सोचेगा यार घर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। यस मतलब एवरेजली मैं देख रहा हूँ 35 में आप लोग चाहो तो रिटायर भी कर सकते हो। और 50 करोड़ अगर आ जा रहा है तो 35 में आप सोच सकते हो कि रिटायर करो और अपना कुछ बिजनेस वगैरह कर लो। देयर आर श्योर अपॉर्चुनिटीज Right, ऐसे right. आफ्टर सी। तो वो एक चीज़ है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज खासकर पीपल हु आर थोड़ा ट्रैवल ड्रिवन, मेंटली वो थोड़ा मतलब दे नीड टू बी स्ट्रांग इसमें आने के लिए। और साथ ही साथ सर एक चीज़ है, बाय नेचर थोड़ा फिजिकल है, बिकॉज वहाँ पे यू
अगर मैं बोलूँ तो 64 mm dia rope. That is the thickness of the rope that you have to pull sometimes. Okay. That was what I was doing initially. So इससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. I'll come to that point also. Yes. You are saying कि मर्चेंट नेवी करियर में फिजिकल स्ट्रेंथ का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है. फिजिकल एंड मेंटल दोनों. ना इस पे मैं आ रहा हूँ. अभी जैसे हमारे गवर्नमेंट काफी एम्फोसिस कर रहे हैं गर्ल्स लोग को इस करियर में जाने के लिए, राइट? एंड लाइक गर्ल्स लोग फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है. सो कैन यू थ्रो सम लाइट कि एक गर्ल का जर्नी क्या रहेगा एंड कितना सेफ है, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, राइट? क्योंकि बहुत कुछ है क्वेश्चनेबल. सो आप थोड़ा सा हमारे इंडियन ऑडियंस जो गर्ल स्टूडेंट है उनको भी आप मोटिवेट करो कि दे शुड जॉइन दिस करियर और नॉट, राइट? सर आई विल टेल वन नेम, Captain Radhika Menon. All right. First Indian lady to be the captain of a vessel. Okay. In Merchant Navy. So all the girls can draw the inspiration from her. उनकी life की journey has really been inspiring, sir. मतलब you cannot imagine to be in a place जहाँ की ज़्यादातर domination males के through हो रही है. Right. तो वो एक चीज़ है. Physical की जहाँ तक बात है, during the period of your training, when you are at sea, when you are at your college, उस टाइम फ्रेम में ही वो आपकी ट्रेनिंग होगी. उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, आपको उस तरीके से बना दिया जाएगा कि चलो यू आर रेडी फॉर टेकिंग अप दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस. एंड जहाँ तक मैंने देखा है सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाइक इन माई कॉलेज आई मेट वन गर्ल एंड शी हर ब्रदर वॉज इन NDA. तो उसने रिसेंटली ही गॉट कमीशनड. And I was in college, 2019 की बात है. I was talking to her and she said कि her brother got martyred last year in some kind of problem, and it was that reason why she joined this. Because she wants to serve the nation in any way possible. Like somebody is getting into this service. This is a commercial venture, but imagine a kind of profession in which 95% of the economy is dependent. अभी हम कार्गोज डील कर रहे हैं, कैपेसिटी जिस हिसाब से हम कैरी कर रहे हैं, वी कैन ऑल्टर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री. सही बात है. तो वहाँ पे आने के लिए गर्ल्स आर, आई वुड से अभी गवर्नमेंट इज रियली एम्फसाइजिंग ऑन दैट. देयर आर कंपनीज, देयर इज मस्क. In my company also, Tom Shipping, we have got a lot of female officers and they are doing really great. ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, बट आई थिंक अगर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर ले रहे हो तो फिजिकली वो चीज़ आप कर लोगे, बिकॉज आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा टेस्ट होगी. लिटरली आपको एक पॉइंट के लिए. या गर्ल्स को व्हाट डू यू सजेस्ट, BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग, कौन सा ज़्यादा, कि दोनों वो जा सकते हैं? सर वो अलग डिपार्टमेंट्स है शिप के, तो बी डेक और इंजन, तो उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, दे कैन डू दैट. अच्छा, इज इट ट्रू कि जो मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड उनका रोल तो वो शिप का मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, इंजन, हाँ, इंजन रिलेटेड. तो आप जैसे बोले कि जैसे कैप्टन एक हायर पोस्ट है, तो थ्रू मरीन इंजीनियरिंग द हाईएस्ट पोस्ट इज दैट इज चीफ इंजीनियर. और दोनों का लेवल क्या होता है, कैप्टन और चीफ इंजीनियर दोनों का सैलरी वगैरह सेम रहता है? सैलरी तो सेम रहेगा, बट इफ आई से ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो कैप्टन वुड बी द हेड. अच्छा. तो डेक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो चीफ ऑफिसर होता है. इंजन डिपार्टमेंट का हेड होता है चीफ इंजीनियर, बट कैप्टन इज द ओवरऑल हेड. तो वो चीज़ है. और इज इट ट्रू कि कभी ऐसा, मतलब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में चल रहा है. व्हाट इफ अगर एक कैंडिडेट है वो बोर हो गया, राइट, कि मेरे को और सेलिंग नहीं करना है, राइट, तो चीफ इंजीनियर, मतलब वो वापस आने के बाद क्या क्या चीज़ में अपने आप को फिट कर सकता है? जैसे मैंने सुना है कि चीफ इंजीनियर इज इक्विवेलेंट टू अ मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, ही कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स. इज इट ट्रू? सर, civil engineer, I think that is something which needs to be corrected, because for any guy like who has already been at sea for a couple of years, there is a lot of options, plethora of options in front of him. The first is कि they can get into a shore job, like they can join the office. अभी से मेरी company है, तो let's say कल को if I am done with, let's say I get a master license, I can come back to Mumbai and I can join as some particular position in that company. Second thing is that you can join as an instructor or as a professor in some marine training institute. All right.
you can join that. So in that also you are getting very good paid. Yes. Right. Then I have a personal experience of talking with many captains. So I know the figures that they are earning after they have stopped sailing, right? yes, So okay. So they will become superintendent बन Alright. सकते हैं या फिर they can get खैर यार इतना पैसा बना लोगे, मत करो काम, ठीक है? बाकी सबको अपॉर्चुनिटी दो. अच्छा, और एक चीज़ है, जैसे कभी एक नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा पॉइंट आया है कि जब वो सब रोलिंग वोलिंग देखते हो लगता है कि आई विल नॉट मेक बैक टू माई होम, ऐसा कुछ मैंने होता है? एक पॉइंट के पहले, हाँ एक पॉइंट पे फील हुआ था ऐसा. दैट वाज आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है. तो वी वर कॉट अप इन सम स्टॉर्म दैट वाज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. एंड सर आप इमेजिन करो एक वेसल जिसकी हाइट कम से कम 50 मीटर है, हम्म. अगर उसके ऊपर एक 10 या 15 मीटर ऊंची लहर का जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो जो रोलिंग होती है ना, दैट इज डेडली. एंड आई वुड से 30 डिग्रीज रोलिंग, जहाँ पे 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज रोलिंग, ओके. 30 डिग्रीज रोलिंग इज लाइक आई केम टू माई रूम एंड आई सॉ कि सब चीज़ें टूट गई हैं, ये सारी चीज़ें जो भी पड़ी रहती है एवरीथिंग हैज़ गॉन. बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक स्टॉर्म जो होता है, आई थिंक द विंड इज़ अराउंड 140 किलोमीटर्स पर आवर. अच्छा. You cannot go out उस टाइम पे, and there are waves who are just coming on the deck. तो उस टाइम पे वेसल खासकर बहुत ही ज़्यादा मतलब you know you are caught up in a very bad storm. और ये कितना दिन तक रहता है ये स्टॉर्म वाला जो इफेक्ट है? डिपेंड्स सर, लाइक आप अगर बिल्कुल यू आर हेडिंग टू द आई ऑफ द स्टॉर्म तो वहाँ पे फिर तो काफ़ी टाइम तक यू विल बी स्ट्रगलिंग विथ कि आप बाहर कैसे निकल रहे हो. बट ये मैक्सिमम क्या मतलब कुछ आवर्स रहता है कि एक सम आवर्स, या ओके. और मतलब ये भी एक क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग यूर सेलिंग ये क्या हमेशा ये शिप तो मूव कर रहा होगा, तो वाइल यू आर नॉर्मली लाइक इन अ पोर्ट और समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो फील लगता है कि डिजीनेस लगता है कि आप हिल रहे हो? और दिस हैपेंड विथ मी आई गेस, दैट वाज इन 2023 जून के टाइम पे. ओके. मैं ऑलरेडी शिप पे 150 डेज आई वाज देयर एट सी, so I was not used to land actually. तो when I first time when I got on land तो एक temporarily momentarily feeling थी वो चीज़ कि it was difficult to process. Your mind and your leg का coordination was something थोड़ा सा lose हो रहा था. But it was okay. I think धीरे धीरे ये चीज़ होती है शुरुआत में, but you get used to it. People who are already into the service they can relate with me. अच्छा, और एक चीज़ है जैसे एज यू सेड कि कैप्टन तो राजा है, राइट? कैप्टन जो ऑर्डर करेगा उसको चिकन बिरयानी खाना है तो वो कहीं भी किसी भी कंट्री में वो मिल जाएगा. इज इट ट्रू? ड्रिंक्स विंक्स कुछ भी सर्व हो जाता है किसी भी जगह में? किसी भी जगह इन द सेंस कि अभी हम शिप पे हैं तो हम शिप का ही खाना खा रहे हैं. और लाइक लेट्स से अगर कभी वैसा मन किया कि यू नो दे वांट टू, कैप्टन वांट्स टू थ्रो अ पार्टी एंड समथिंग, तो वी हैव अ लोकल एजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया स्पोर्ट का, तो वी कैन आस्क देम, तो यू कैन थोड़ा बहुत वो अरेंज करा सकते हैं हमारे लिए. ये मतलब आई वाज इन चाइना फॉर 1 month, सो वहाँ पे भी देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज इन चाइना दैट आई वुड टेल यू बाद में. इट वाज लाइक कि वी यूज्ड टू हैव पार्टी ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारी पार्टी होती थी. तो वी यूज्ड टू कॉल KFC से कुछ मंगा लिया, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, वहाँ भी KFC से मंगवाते थे? सो इट वाज लाइक दैट, तो हो जाता था. इट इज़ फाइन, मतलब आप एडवेंचर्स कर रहे हो, खाना पीना इज ऑल गुड. पीना के बारे में पूछ रहा हूँ, लाइक पीना और सेलिंग करना ये एक दिस इज समथिंग जो कि अभी की बेस्ड ऑन द करंट रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, एंड पहले भी कुछ टाइम पहले से भी ये चल रहा है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, खासकर पी नहीं सकते हो. ड्रिंक को लेकर के है. यू कैन ड्रिंक, ओके, बट यू नो लेट्स से इफ यू आर ऑन वॉच, अगर आप वॉच आपका लेट्स से 8 बजे रात को शुरू होने वाली है, तो आप शाम के 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक एनीथिंग. तो 4 hours बिफोर योर वॉच यू आर शुडंट. अगर पकड़ाए तो क्या होगा? लाइसेंस कैंसिल हो जाता है? हमारी कंपनी में सर यू विल डायरेक्टली गेट टर्मिनेटेड. राइट. There are 2 bases on which you can get terminated. One is you violate the alcohol policy, ओके. and the second is you do some kind of marine pollution, तेल का पानी में गिरना ओके. in a good reasonable quantity, then it will be थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. उस केस में किसको मतलब सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है? पहले तो सर कैप्टन पे ही बात उठती है. ओके, उसका लाइसेंस चले जाता है इन दैट केस? यस, कैप्टन का लाइसेंस जा सकता है. ही विल बी इन जेल फॉर 2 years, नहीं तो hefty फाइन्स खाली लग थोड़ा सकते सा हैं. अगर तेल गिर गया? थोड़ा मतलब देयर इज अ लिमिट एक्चुअली. उसके बियॉन्ड
That will depend from place to place, वैसा राइट, रहता सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल किस जगह में है वर्ल्ड में? है। US waters यूएस वाटर्स, वहाँ पर मतलब थोड़ा भी अगर ऑयल वॉयल गिरा तो काफ़ी stringent होते हैं सर. They have got a very high technology. They can detect anywhere, any place. Alright. उनका ऐसा है कि if you are entering US waters, you have to take the US water inside your tanks. मतलब जैसे हम जहाज़ पे बैलेस्टिंग करते हैं या डीबैलेस्टिंग करते हैं, कभी हम कार्गोज नहीं है जहाज़ पे, तो उस टाइम पे शिप इज़ वेरी लाइट. थोड़ा सा भी विंड होगा, थोड़ा सा भी स्वेल आ गया तो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ती है. तो फॉर स्टेबिलिटी पर्पस हम वी टेक अप सी वाटर. यूएस में क्या है, यू हैव टू टेक द यूएस सी वाटर, यू कैन नॉट टेक द वाटर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, यू हैव टू डीबैलेंस देन अगेन डू बैलेस्टिंग. वहाँ पे दे हैव गॉट वेरी stringent policies and they will be checking on you at any point of time. तो आप वहाँ पे you cannot foul anything or bluff anything, it's like that. And yeah. Now coming back to one more very important questions during this entire sailing journey, what are the wow moments that you experienced? Like कुछ ऐसे 3 moments बता सकते हो जो कि एकदम मतलब अलग था तुम्हारे लिए? हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट आई वुड से इन माई सेकेंड शिप एक्चुअली मैंने ब्राज़ील से ज्वाइन किया था. सो ब्राज़ील में देर इज़ अ प्लेस इन स्वापे, तो वहाँ पे आई बोर्डेड माई वेसल एंड वहाँ से वी वेंट टू रियो डी जनेरो. एंड वहाँ पे सर, लाइक व्हेन यू एंटर दैट पोर्ट, you know, you would see the seventh wonder of the world, the Christ the Redeemer, a big bada sa like this, welcoming you in the port waters. So it was like very good thing. दूसरी चीज़ wow moments में बोला जाए, there is one thing we call it as dry dock, जहाँ पे हर 5 years में the vessel has been, you take out the vessel from the water and you do all the inspection. वो पहला मोमेंट था जब मैंने शिप को एक्चुअली अच्छे से देखा था, मतलब प्रॉपरली ऑन द लैंड. तो वो हाइट एंड एवरीथिंग, हाउ मैसिव इट इज़, तो दैट इज़ वन थिंग. तीसरी चीज़ वाज यू गेट टू यू आज की डेट में एनीबडी, अगर किसी का घर अगर शोर के पास में है, दे हैव दैट, या फिर लोगों को एक्चुअली सोचना पड़ता है कि अगर उनको एक बहुत बढ़िया सा सनराइज या सनसेट देखना है तो उनको या तो शोर के पास में रहो, नहीं तो फिर यू सी दैट ब्यूटीफुल साइट. वी गेट टू सी दैट साइट ट्वाइस अ डे, सुबह का सनराइज एंड शाम का सनसेट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट एक्चुअली. तो वो एक तीसरी चीज़ है जो हम हर दिन हमें देखने को मिल जाता है. आई हैव सीन साइबेरियन क्रेन्स पासिंग ऊपर से, आई हैव सीन सबमरीन्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर. Submarines, wow. Yeah, that is how they do. I guess it was in Mediterranean Sea, and I could see the submarine coming out of the water and हमारे नीचे से पार हो रहा है. तो वो एक चीज़ है. What are the sea creatures that you have visualized in the journey? Mediterranean Sea में I came across lot of whales. Sharks तो बहुत ऐसे मिल जाते हैं, आपका इंडियन ओशन में भी दिखे थे. Near Sri Lanka and places in northeast, I could see a lot of dolphins. Alright. तो वो है. Wow. तो it is And, like that. समुद्र का And भी I can see dolphins are racing across the ship. मतलब they are just बगल में रेस कर रहे हैं हमारे साथ, 3-4 फैमिली पूरा साथ में. So that is one thing. समुद्र का भी कलर अलग अलग होता है यार हर जगह. हाँ सर, that will depend on the depth. Mediterranean Sea में आपको प्योर ब्लू कलर दिखेगा. That would depend on the depth you are saying. Yes. मतलब ये कैसे तय करेंगे कि कलर से, मतलब कौन जिस जगह सबसे ज्यादा डेप्थ है उस जगह कलर क्या होगा? वहाँ पे कलर आपको डार्क ब्लू दिखेगा पानी का. डार्क ब्लू. Yes. और ब्लैक कहीं दिखता है? ब्लैक नहीं, मतलब वही डार्क dark ब्लू blue होता है. नहीं तो इफ यू विल गो टू स्विस, हमने स्विस कनाल ट्रांजिट किया है. Okay. स्विस कनाल में द डेप्थ इज वेरी लेस, 25 मीटर्स डेप्थ है वहाँ पे. एंड जो सबसे ज्यादा डेप्थ वाला जगह बोल रहे हो उसका कितना होता है? अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा डेप्थ जो एक्सपीरियंस किया है दैट वाज 4 किलोमीटर्स. 4 किलोमीटर्स? यस, वो 4. किस जगह में आप एक्सपीरियंस वो मैंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखा है. और वो डेप्थ कैसे पता चला कि उस जगह को उतना है? वी हैव इक्विपमेंट्स ऑन द शिप, ओहो, so that will give you that Wow. they throw that echoes every time and they'll give you the data. या फिर चार्ट्स जो होते हैं बेसिकली, Alright. तो चार्ट्स के थ्रू भी आपको, सर्वे के थ्रू यू विल गेट टू नो कि हाँ यहाँ का डेप्थ ऐसा है. ऑलराइट. एंड ये पता चलता कैसे, जैसे हम लोग का एक और क्वेश्चन है, इंडिया में रहेंगे तो कहीं भी हम लोग का लाइक फ़ोन कनेक्टिविटी रहता है. यस. तो ये जब आप सेलिंग करते हो तो आप घर में कॉल वॉल कैसे करते हो? Sir, we in our company they have given this particular facility.
हमें 1 मंथ का ऐसे जीबी मिलता है या 1 वीक का हमें जीबी मिलता है, लाइक फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कोई 1 मंथ का देती है, हमारे में 1 वीक का रहता है। तो इन 1 वीक वी गेट अराउंड 2.5 जीबी, सो ओके फॉर 1 वीक। ओके। सो उसमें फिर आपको, हमें तो उतना टाइम मिलता नहीं और है ये घर के मतलब कहीं बाद। भी वो किसी भी जगह में नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, मतलब इन द सी ऑल्सो? वी डू दिस थ्रू सैटेलाइट, ओके, सो दिस इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब काइंड ऑफ स्टारलिंक थिंग। वाला चक्कर है। यस, स्टारलिंक वाला ही चीज़ है। तो नाउ यू आर यूजिंग स्टारलिंक ओनली? यस, वी आर यूजिंग दैट। तो वाओ, 1 GB थैंक्स टू का एलॉन मस्क, राइट? तो ठीक है। 1 GB का डेटा का फैसिलिटी मिल गया है हमें। तो अब एंड बात बात करने का कोई फर्स्ट दिक्कत नहीं है? वीडियो कॉल्स आराम से, कॉल्स मतलब वगैरह बीवी आराम भी से। खुश और गर्लफ्रेंड भी खुश, नहीं? बात जब मन करा कर लिया, नहीं? तो यस पहले जब एलॉन मस्क स्टारलिंक नहीं लाया तो उसके पहले वाला सीन क्या था? सर, पहले वही होता था, लाइक उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज अ बिग थिंग। पीपल उसीलिए यूज्ड टू राइट ब्रेकअप्स हो जा लेटर्स रहा था। इन द पास्ट। देयर इज लॉट ऑफ ट्रांजिशन पहले के सेलर्स और अभी के सेलर्स में। वी आर द मॉडर्न सेलर्स। ओके। तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स आ गए हैं शिप पे, एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ फैसिलिटीज जो पहले नहीं थे। उनके टाइम पे उनमें प्रॉपर्ली लेटर्स लिखना पड़ता था, एंड बाय द टाइम द लेटर इज रीचिंग यू, आप कहीं और चले गए हो, यू नो, बिकॉज यू आर ऑन शिप। इसीलिए हम तो मैंने सुना है कि कोई कोई स्टेट में तो मर्चेंट नेवी वाले दूल्हा को एकदम, मतलब ऐसा है क्या कुछ? आई सुनना थिंक, सुना था ऐसा। yeah, there is a mentality like that. You know, people usually get that thought ki, somebody who is not not is going to be with you for this particular time of period. तो वहाँ पे it is very important you find a person who is going to understand this thing, and you prepare yourself accordingly उसके हिसाब से emergency के time पे तो and all इज देयर अ that. प्रोविजन दैट यू कैन टेक योर वाइफ इन द जर्नी? वो भी अभी है क्या? There are few companies हाँ हाँ। जहाँ पे ये provision senior officers को दी जाती है। अच्छा, सीनियर ऑफिसर्स Senior को? officers सीनियर को दी ऑफिसर जाती है। मतलब फर्स्ट ऑफिसर? कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर, ओके। या फिर सेकंड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर को भी ये फैसिलिटी मिलता है कि वो उनको अपना मिल जाता है। फैमिली को लेके जा सकता यस, दे कैन टेक योर फैमिली। वेकेशंस है तो उसमें क्या है कि यू डू 1 वॉयज, तो आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, या 2 वॉयजेस तक, एंड देन दे विल डिसएम्बार्क। वो चीज़ है। अभी के डेट में नाउ द कंपनी इज मोर इनटू कॉस्ट कटिंग, सो दे विल, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। है? चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, राइट? हाउ मच डज अ कैप्टन अर्न? दैट इज़ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन, आई वुड से। हाँ, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा है ये सवाल। आई थिंक सर, फ्रॉम इट डिपेंड्स फ्रॉम वेसल टू वेसल। फॉर अ कैप्टन हु इज़ वर्किंग ऑन अ ड्राई फ्लीट, तो his range would be around, let's say, $10,000 to $12,000, I would say, ऑलराइट। per month. Yeah. Then for a captain who is into liquid cargoes and vessels carrying liquids, usme it would range from 14,000 to, let's say, $17,000. And there is a category of liquid cargoes jahan pe we are basically dealing with chemicals. Wahan pe the salary would be quite high. I think that is the highest because it contains the highest risk. So there the salary would be between $17,000 to $20,000 per month. So you are saying $20,000, which Yeah. according to Indian rupees would be 20 lakhs per month. Yeah, roughly. So lot of motivation to the merchant navy aspirants, right? 20 lakhs per month is the salary which a captain earns. So, and that is in the beginning years. And if a captain stays a captain for the next 5 years, is there a increment in that also, or it would be stagnant? Like for a chemical tanker, now this figure is something which I'm just giving an approx figures that can to be you. more than that also. Yeah, it can be more. It is like a range between 17,000 to 20,000. So for beginning with a chemical cargo vessel, so it would start with 17,000, 18,000. It will go up to 20 or 21. So that is how it is. Alright. And यार बिहारी हो and मतलब जमशेदपुरिया बैकग्राउंड से है, Yes, तो मतलब पेरेंट्स का ये भी चिंता रहता है कि यार कोई दूसरे कंट्री में जाके क्या खाना है, क्या पीना है, राइट? तो ये भी कुछ वियर्ड मतलब एक्सपीरियंसेस हुआ है? मेरे फर्स्ट शिप पे हुआ है सर, लिटरली 3 महीने मैं सिंस इकलौता इंडियन था, हाँ। तो 3 महीने मैंने सिर्फ सर्वाइव किया है चावल, दाल, अचार और सैलेड। सत्तू भेजी थी मम्मी, सत्तू और ठेकुआ? नहीं नहीं। नहीं। So it was like that. China में I had got some strange experiences क्या खाए also. थे भाई चाइना में? चाइना तो We went to popular a है। restaurant over there and it was like I ordered for chicken. हम्म। So over there chicken is everything ना. So that waiter came and उसने मुझे इशारे किए, मैंने पूछा what is it? Because उसने देखा, मैंने प्लेट देखा, इट्स चिकन तो नहीं लग रहा है ये लिटरली, इसके क्या है इसमें, तो he gave me that इशारा like this.
So what was this? and it was a frog. So he got a frog for me. तो ये सब And खाना there पड़ता है are- यार कि ऑप्ट आउट कर गया. नहीं, मैंने नहीं खाया लिटरली, बट मतलब ये करियर उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम मतलब वेजिटेरियन है इंडियन मेंटालिटी से. थोड़ी डिफिकल्ट होती है फॉर डिफिकल्ट होती है, वेजिटेरियन. बट उनको भी खाना पड़ेगा कभी कभी, ऐसा है क्या? बहुत सारे ऐसे सी फायरर्स हैं जिनको मैंने देखा है जो फ्रॉम वेज टू नॉन वेज उनको बनना पड़ा, बिकॉज बनना पड़ा. आफ्टर ऑल यू नीड फूड, सो एनी हाउ यू हैव टू ईट इट. सो मिस्टर जैक स्पैरो, समुंदर क्या सिखाया यार तुम लोगों को? काफ़ी सारी चीज़ें तो आई हैव लर्नड फ्रॉम द सी सर. फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड वाज, एज आई मेंशन्ड बिफोर, कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. एंड यू नो ये कौन सा मूवी का डायलॉग था? रईस Race, पिक्चर का ना? yes. Because that is how we are being prepared for, like, you know, I have seen times जहाँ पे I have cleaned the bilges of the sea, of the vessel, या फिर you know, it is about mopping the alleyway or cleaning the toilets or something. That was very normal, that was standard thing that I was doing. And इसके through मुझे ये समझ में आया कि And earning in dollars. in our country, literally, you know, we have this mentality कि somebody who is working in a gas station or somebody who is washing utensils or something, तो we don't look them up to them कि उतना खास से respect. But जब आप वो काम करते हो ना, तो you get कि क्या होता होगा या क्या चीज़ है, what it takes to do it, and you earn, you see things from grassroots level, and you are able to have that, gain that respect towards those people जब आप खुद से हाथ से कर रहे हो. Second thing that C has taught me is it makes you humble. C actually makes you humble because you know, in our country, or I see a lot of people around, they have got this ego problems. You know, I'm this big or I'm that big. I think we are at sea and we are just at the mercy of the sea. Kal ko when the nature is going to turn the tables against you and you just can't do anything, we are just a point object. मैंने देखे हैं कि जब हालत ख़राब होती है, and when you see that, आपका सारा ego and everything will go down, and you'll see कि how कितने छोटे हो आप, you're just a small point in the universe. So that is something that life and sea has you know, taught me. It has humbled me a lot to this extent. I think people with me can actually relate to this. Third thing that it has taught me is, you know, you will always have bad days and good days in your life. Best part is that, you know, bad days also, you know, it gets over, you know, bad days also passes. There are people with you जिनके साथ आपको handle करनी पड़ेगी चीज़ें. You have to stay with that person for 6 months. आपको उन्हीं को देखना है, आपको उन्हीं के साथ काम करनी है, आपको उनसे ही काम करवाना है. You should have, or you should learn that people management, जो कि आपको कहीं पढ़ने की, we will not be, we are not taught these things from a B school. We have to see this from a practical point of view, and you have to handle it. Exactly. वहाँ पे the captain's role plays a very important, you know, it is a very important role over there. तो वो चीज़, आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, आपको हर जगह से लोग मिलेंगे, हर देश के लोग मिलेंगे, जो आपको मे बी आप उनके साथ उतना रिलेट ना कर पाओ, या मे बी आपको वो थोड़ा ट्रिगर करे, या कभी डिफ़िकल्टीज हो बात करने में, जो भी है. बट दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड यू शुड बी एबल टू हैंडल दोज सिचुएशंस ऑल्सो. तो पीपल मैनेजमेंट इज़ वन थिंग जो मैंने सीखा है अभी. तो या that So you have made a lot of friends from different countries. Yes, I have learned Tagalog, the language of used in Philippines. You know, my name Ayush, they don't call me Ayush, they call me Ayos. Ayos, and Ayos means good in Philippines. All right. So that is how they used to call me. So they'll call me in the morning, Kamos taka Ayos, how are you Ayos doing? So yeah, I've learned a lot of languages with them, and yeah, I've made good friends over there also. A lot of good person from different part of the globe. Different right? part of the globe, yeah, literally. Right. Pleasure talking with you, Ayush. Right. थैंक्स अ लॉट आयुष. बहुत कुछ छोटे छोटे नुआंसेस आप बताए हमारे इंडियन दर्शकों को. और अभी ये जो मर्चेंट में है, वी आर एक्चुअली हैविंग द डेटाज. तुम्हारे समय में जितने बच्चे दे रहे थे और इस साल जितने बच्चे दिए हैं, दैट नंबर्स हैज सर्ज्ड. So hopefully you and lot many, I mean, such podcasts are required from people in your industry जो कि बच्चों को मोटिवेट करेंगे. एंड एक प्राउड मोमेंट भी है, बिकॉज ऐसा लगता है कि लाइक एक टीचर के लिए तो ये कहावत सही भी है कि इफ़ इज़ नॉट अ किंग ही कैन डेफिनेटली बी अ किंग मेकर. राइट. तो मुझे तुम लोग को देख के वैसा ही कुछ फील आ रहा है यार. आई एम रियली प्राउड. और बहुत अच्छा करो, ठीक है, और देखते हैं, एड सम वैल्यू टू द सोसाइटी एंड ऑल. राइट. थैंक्स अ लॉट. इट वाज रियली
privilege. It's my pleasure, sir, actually, because to be a student of Drona and now getting into this, बहुत सारी चीज़ें experience हुई है. I remember the samosa party we had. We used to have a lot of samosas party. तो samosa का भी बहुत बड़ा contribution है. But yeah, thank you so much, sir, for this. कुछ Actually, टेस्ट ऐसे भी किए थे जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आया था, तुम्हारा मुंह ऐसे झूल गया था, राइट? yes, sir, of वहाँ से course, यहाँ तक है यार, रियली लाइफ चेंजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मुझे लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस से हर एक बच्चों को ये अपने करियर के बारे में एक अर्ली स्टेज में ही सोचना चाहिए.